ہاؤس آف انفارمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام عرض ہے۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے یورپ کے ایک ایسے ملک کی جو کہ اپنی خوبصورتی، ترقی اور پرامن ہونے کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے ہنگری کی، جو کہ دنیا میں 21ویں نمبر پر محفوظ ترین ملک مانا جاتا ہے۔ ہنگری ایک ایسا ملک ہے جس میں 1500 سے زیادہ گرم پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ ہنگری کو اردو میں مجارستان بھی کہا جاتا ہے۔ ہنگری ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہنگری ایک ایسا ملک بھی ہے جس میں چرچز کی تعداد دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، ہنگری ایک لینڈ لاکڈ یعنی کہ زمین بند ملک ہے جس کے کسی طرف بھی سمندر واقع نہیں ہے، بلکہ اس کو گردونواح سے آسٹریا، سلوواکیہ، یوکرائن، رومانیہ، سربیا، سلووینیا اور کروشیا جیسے ممالک نے گھیر رکھا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ ہمیں فیس بک پیج، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہنگری یعنی کہ مجارستان کا رقبہ 93,030 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 108ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہنگری کی کل آبادی 2018 کی مردم شماری کے مطابق 97,71,000 ہے اور اس اعتبار سے یہ ملک دنیا بھر میں 92ویں نمبر پر آتا ہے۔ بوڈاپسٹ ہنگری کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی 17 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ یورپی یونین کا 10واں بڑا شہر ہے۔ ہنگری کا کالنگ کوڈ +36 اور انٹرنیٹ ڈومین .hu ہے۔ یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر کی جاتی ہے۔ ہنگری کا شہر بوڈاپسٹ دریائے ڈینیوب کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، جس کے ایک حصے کو بوڈا جبکہ دوسرے حصے کو پیسٹ کہتے ہیں، اور پلوں کے ذریعے اس شہر کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ ہنگری کی کرنسی ہنگیرین فارنٹ ہے جو کہ پاکستانی اور انڈین کرنسی سے کم تر ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ 2.19 ہنگیرین فارنٹ جبکہ ایک انڈین روپیہ 3.80 ہنگیرین فارنٹس کے برابر ہے۔ ہنگری وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 جبکہ انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہنگری کے کل رقبے کا 0.74% پانی پر مشتمل ہے۔ دریائے ڈینیوب اور دریائے ڈیسوزا 2 ایسے دریا ہیں جو کہ ہنگری کے علاوہ کئی قریبی ممالک کو سیراب کرتے ہیں۔ ہنگری کے لوگوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں میں ہوتا ہے، جو کہ اپنی آمدنی کا 38% ٹیکس کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہنگری کے لوگ جب خود کو متعارف کراتے ہیں تو اپنا پہلا نام بعد میں بتاتے ہیں۔ میکڈونلڈ وہ پہلا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ تھا جس کی برانچ ہنگری میں 1988 میں قائم کی گئی تھی۔ ہنگری نے 13 نوبل پرائزز جیت رکھے ہیں۔ فرانس، اٹلی، UK، USA اور رشیا کے بعد سب سے زیادہ سمر اولمپکس گولڈ میڈل ہنگری نے جیت رکھے ہیں۔ سمر اولمپکس میں حصہ لینے والی 211 ٹیموں میں ہنگری 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہنگری نے 448 گولڈ میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں۔ ہنگری یورپ میں فرانس، جرمنی اور اٹلی کے بعد سب سے پہلے قائم ہونے والا ملک ہے۔ ہنگری میں والدین اپنے بچے کا نام ہنگری حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ناموں میں سے ہی رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی الگ نام رکھنا ہو تو اسپیشل پرمیشن کے ذریعے ہی رکھنا پڑتا ہے۔ ہنگری میں 1500 ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں سے گرم پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بوڈاپسٹ کی زمین سے ہر روز 70,000 لیٹر کے قریب پانی نکلتا ہے اور لوگ شفا یابی کے لیے یہاں نہانے آتے ہیں اور انہیں سپاز کہا جاتا ہے۔ لیک بلاٹون ہنگری اور وسطی یورپ کی سب سے بڑی اور یورپ کی دوسری بڑی جھیل ہے۔ یہ جھیل 592 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔
हंगरी का पासपोर्ट दुनिया में 9वें नंबर पर ताकतवर तरीन पासपोर्ट माना जाता है, जिसके हामिल अफराद दुनिया में 155 ममालिक में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं और 35 ममालिक ऐसे हैं जो ई वीज़ा की सहूलत देते हैं, जो उन ममालिक की हदूद में पहुंचकर आपको दे दिया जाएगा। हंगरी में तालीम की शरह 99% है और हंगरी अपने बजट का 5% तालीम पर खर्च करता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी मुल्क की अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। हंगरी के लोगों की मशहूर ईजादात में बॉल पेन, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज, रूबिक क्यूब और इलेक्ट्रिक मोटर्स शामिल हैं। हंगरी एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है, क्योंकि इस मुल्क का हर तीसरा शख्स किसी और मुल्क में आबाद है और दूसरी वजह यहाँ पर स्लो बर्थ रेट है। हंगरी की कुल आबादी में से 98.3% हंगेरियन नस्ल के लोग, 3.2% रोमेनियन, 1.8% जर्मन और 1% लोग ऐसे हैं जिनकी नस्ल को वाज़ा नहीं किया गया है। यहाँ की कुल आबादी में 54.3% लोग ईसाईयत से तल्लुक़ रखते हैं। 18.2% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ नहीं रखते और 27.2% लोग ऐसे हैं जिनके मज़हब को भी अभी तक वाज़ा नहीं किया गया है। हंगरी के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सितंबर 2009 में 5391 लोगों ने एक ही वक्त में चाक से ड्राइंग करने में हिस्सा लिया और यह रिकॉर्ड गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। 2007 में हंगरी के दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर करीबन 6400 जोड़ों ने एक दूसरे को किस किया और यह रिकॉर्ड भी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हंगरी के लोग 96 नंबर को बहुत अहमियत और इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि हंगरी की पहली रियासत की बुनियाद 895 ईस्वी में रखी गई थी, लेकिन ये लोग इसको 896 ईस्वी में मानते हैं। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में कोई इमारत भी 96 मीटर से बुलंद नहीं है, सिवाय पार्लियामेंट इमारत के, जो कि 96 मीटर बुलंद है। और दिलचस्प बात यह है कि हंगरी का नेशनल एंथम भी 96 सेकंड्स में पढ़ा गया था। खुदकुशी करने वाले ममालिक में हंगरी का 12वां नंबर है, जहां पर हर साल 1 लाख लोगों में से 22 लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लिथुआनिया इस हवाले से पहले नंबर पर है। इस सिलसिले में इंडिया 21वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान 117वें नंबर पर आता है। दोस्तों, अब आते हैं हंगरी की तारीख़ पर। हंगरी में इंसानी ज़िंदगी के आसार 4000 कबल मसीह के मिलते हैं। पहली रूमी सल्तनत के दौरान हंगरी का कुछ हिस्सा रूमी सल्तनत में चला गया था और रूमी सल्तनत के बाद इसे किसी भी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया गया। हंगरी की पहली सल्तनत की बुनियाद 895 ईस्वी में रखी गई थी और इसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। यह सल्तनत इस खिते में कायम की गई थी जिस खिते में आज रोमानिया और स्लोवाकिया जैसे ममालिक आते हैं। यह सल्तनत 1000 ईस्वी तक कायम रही और उसके बाद काफ़ी छोटी छोटी रियासतों ने हंगरी के साथ इश्तराक किया। बुल्गारियन सल्तनत ने भी 1000 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक इत्तेहाद कायम किया और इसको किंगडम ऑफ हंगरी का नाम दिया गया। 1366 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया ने इस सल्तनत को फतह करने के लिए इस पर काफ़ी हमले किए और जंगें भी हुईं। इन जंगों को ऑटमन वार्स का नाम दिया गया। आखिरकार उस्मानियों ने इस खिते को फतह कर लिया और 1541 ईस्वी में ऑटमन हंगरी की बुनियाद रखी गई। यह रियासत 1699 तक कायम रही। इसके बाद कई रियासतें बनी और कई इनकलाबात आए। 1848 ईस्वी में हंगरी ने ऑस्ट्रिया के साथ इत्तेहाद कर लिया। पहली जंग अजीम तक इस सल्तनत को ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम दिया गया। 1919 ईस्वी में हंगरी ने सोवियत यूनियन के साथ इश्तराक कर लिया। 1920 ईस्वी में किंगडम ऑफ हंगरी का क़याम अमल में आया। हंगरी ने 1 मई 2004 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत अख्तियार की। हंगरी में लोग शीशे के गिलास या शराब की बोतलें क्लिंक करके चीयर्स नहीं करते, क्योंकि इनके मुताबिक 1848 ईस्वी के हंगेरियन इनकलाब में ऑस्ट्रिया के लोगों ने जब 13 हंगेरियन जनरल्स को कत्ल किया था, तो हर एक जनरल के कत्ल के बाद उन्होंने शराब के गिलास और बोतलें क्लिंक करके चीयर्स किया था।
हंगरी पाकिस्तान से 4620 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। हवाई रास्ते से जाने के लिए पाकिस्तान से हंगरी तक 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन शर्त ये है कि रास्ते में स्टे ना हो। हंगेरियन हंगरी की कौमी और सरकारी ज़ुबान है और इसके बोलने वालों की दुनिया भर में तादाद 13 मिलियन से भी ज़्यादा है। यह यूरोप में 13वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान है। हंगरी में 99% लोग यही ज़ुबान बोलते हैं। हंगेरियन ज़ुबान दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबानों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इंग्लिश और जर्मन ज़ुबानें भी यहाँ पर बोली जाती हैं, जबकि यहाँ पर गैर मुल्की स्लोवाक और यूक्रेनी ज़्यादा बोलते हैं। उकाब हंगरी का कौमी परिंदा और काफ़ी हंगरी का कौमी मशरूब है। हंगरी पार्लियामेंट की इमारत 1896 में हंगरी की मिलेनियल सालगिरह पर तामीर की गई थी। इस इमारत की लंबाई 96 मीटर, 691 कमरे और 20 किलोमीटर तक सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत को तामीर करते वक्त इसकी आराइश के लिए 40 किलो खालिस सोना इस्तेमाल किया गया था। रोमानिया की पार्लियामेंट और लंदन की वेस्टमिनिस्टर इमारत के बाद ये दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। पावर प्लांट्स के शोबे में भी हंगरी का अपना ही एक मुकाम है। एटलिक नेशनल पार्क यहाँ का मशहूर तरीन सियाती मुकाम है। इस पार्क को पहाड़ काट कर बनाया गया था और इसमें बहते चश्मों को एक झील की सी शक्ल दी गई है। इसके अलावा यहाँ की मशहूर जगहों में लेक ब्लाटोन, चैन ब्रिज, हंगेरियन स्टेट ओपरा, थर्मल बाथ, मार्गरेट आइलैंड, बुद्धा कैसल और हंगेरियन पार्लियामेंट शामिल हैं। फुटबॉल हंगरी में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। इसके अलावा बॉक्सिंग, शतरंज, रेसलिंग, स्पीड स्केटिंग और इसके अलावा ओलंपिक्स की कई एक खेलें हंगरी में खेली जाती हैं। यहाँ की सनतों में केमिकल्स इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल हंगरी की आमदनी के अहम तरीन ज़राए हैं। जर्मनी हंगरी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा सियाहत भी हंगरी के आमदनी के ज़राए में से एक बड़ा ज़रिया है, जहाँ हर साल औसतन 12 मिलियन लोग सियाहत की गर्ज से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।